Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, बच्चे. Good evening, sir. Good evening. कल बच्चे सेलेक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ? Yes, sir. ओके, अपनी अटेंडेंस बच्चे मार्क कर दो. अरे राइट योर नेम, योर रोल नंबर. ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ. ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ. कोई डाउट नहीं है बच्चे कल दे लेक्चर्स? No, sir. No, sir. चलो then we will move forward. कल बच्चे ਆਪਾਂ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਈਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ CSS ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਵਿਦ ਸਟਾਈਲ tag in nested inside head tag. Now we will see the external CSS. Attendance mark कर देना बच्चे जो भी आ रहे ने, and from the next time onward आने बस attendance अपनी mark ज़रूर कर देना. Okay, so now we will see how to apply external CSS. बच्चे एक external CSS अपन बनाई हुई है. Its name is format.css. In case you can see the title here. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ क्लास CSS selector है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज ਕੀਤਾ ਹੈ. Now we will incorporate that here. तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ link tag ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that's the tag we need. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ important attributes ਨੇ. First is the relation. ਕੀ ਹੁੰਦਾ relation? Style sheet, ठीक है, style sheet. Okay, type, type आएगी साड़ी text slash CSS, and last is href. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ path आएगा of the CSS file, ਆਪਾਂ relative path दे रहे हैं format dot CSS. सेव किया,
css demo नाम दी साडी html file है. Let's run this. And as we can see, पहला एक बारी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ without ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੇਵ ਕੀਤਾ. As you can see, there is only a paragraph that's in the blue color. That's in the blue color, and then there are 2 or 3 spans, and last ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ division ਹੈ. Right? सब कुछ black color ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ notepad ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਅਗਰ, तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ format.css ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ s1 ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ foreground color green ਹੋ ਜਾਵੇ. तो s1 ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, तो ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ s1 ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ s2 ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ s1 ਕਲਾਸ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ. तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ execute ਕਰਦੇ ਹਾਂ. and you can see the green color appears on the very first span as well as on the division, right? external css बच्चे इतना लगेगी. link tag, you have to use a link tag along with the 3 attributes. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. obviously the href is a mandatory attribute. ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that what will happen. तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. तो ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ obviously ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. why? because ਸਾਡੀ css ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. now we will see कि टाइप ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. सेव किया, we are executing it. तो टाइप इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, because here with the extension you are mentioning that this is the css file. so अगर तुसी टाइप नहीं भी लगाते हो तो गूगल क्रोम में चल रही है, but some of the browser might not support this. so फेवरेबल यही है कि तुसी टाइप एट्रीब्यूट भी यूज करो. Any questions? No, sir. Okay, so ਆਪਾਂ ਹੁਣ कुछ different types ਦੇ देखिए selectors. last time ਆਪਾਂ जो selectors देखे सी, and now we will not deal with the external css. ਆਪਾਂ internal css ही use करांगे. so मैं हटा रहा, I am using the style tag. okay, obviously let's say मैं इस span ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ formatting नहीं करना चाहता. I just want the formatting to be done on this division only. so I will use a combination of tag name and class to see key impact on that. I saved it, I just execute it, and this is a yellow color for my division. ठीक है, अगर तुसी एक ही चीज़ क्लास जो है मेंशन की हुई है बहुत सारी जगह पे, एंड कुछ फॉर्मेटिंग तुसी चाहते हो कि किसी एक ही चीज़ उत्ते आवे, सब दे उत्ते ना आवे जी क्लास है, तो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर टैग नेम एंड क्लास नेम, राइट? Yes, sir. ओके, चलो एक और चीज़ देखते हैं आप.
होवर लिंक ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ है ना? लिंक के ऊपर चलता है ना होवर। लेट्स से देखते हैं पैराग्राफ के ऊपर चलता है कि नहीं चलता है। नो, इट वोंट वर्क ऑन पैराग्राफ। तो हम इसको इनका टैग पे ही लगा के देखते हैं। I'm not providing any like, ठीक है। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ so that you can have a better understanding। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ CSS ਸਿਲੈਕਟਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ CSS ਸਿਲੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। you can use ID, you can use tag names, you can use class names, right? And you can use a combination of class and tag। then there are other form of CSS ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ pseudo class ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ pseudo class ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਕਰ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਹੋਵਰ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, pseudo class। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? pseudo class, right? तो सिर्फ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਹੋਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ pseudo classes ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ pseudo class ਨੇ like this first child। ठीक है, then you have a lang, बट एना जब कुछ कुछ ही यूज करते हैं। फोकस है, राइट? इन बंद कर Yes, दिया। sir. नेक्स्ट इज योर pseudo elements। pseudo elements आई गैस ਆਪਾਂ यूज नहीं किए लास्ट टाइम। pseudo elements ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ करके दिखाना so that you can have a better understanding of that। paragraph double colon first letter, this is one of the pseudo element। तो रन करके देखते हैं। So have you can you see the paragraph and the very first letter of the paragraph? Yes, sir. What's the color Yes, of it? sir. Red color. Red color। Red. And the rest of the paragraph, it's blue। Blue. Yes, so this is called pseudo element। this is element and this is pseudo element। and when you use pseudo element, the separator between the element and pseudo element is double colon, है ना? जो ਆਪਾਂ pseudo class ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਸੀਗਾ, right? Save, run, and as you can see now it's a green। तो फर्स्ट लेटर ही नहीं, फर्स्ट लाइन भी होंगी है। फर्स्ट लाइन पूरी दी पूरी पहली लाइन रेड हो गई। ऑब्वियसली ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ कंटेंट ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ हैं। and now you can see only the first line is in the red color, the rest of the paragraph is in
blue color. ठीक है. Then there are plenty of other pseudo classes as well. Pseudo elements, sorry. So these are some of the pseudo elements. Second. Yeah, these are before, after. ये बच्चे उन्हें important नहीं है because you will not use them very frequently. First letter ਆਪਾਂ normally ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ use. ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਕਲਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਫੌਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਲੁੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ. ਠੀਕ. ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ. ठीक है. इंसर्ट आफ्टर एंड बिफोर मतलब कुछ इंसर्ट करना आफ्टर और बिफोर. इफ यू वांट टू ऐड सम इमेज यू कैन यूज दैट. मैं सिलेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. लेट्स से पैराग्राफ सिलेक्शन ਤੇ रेड कलर हो जाए. नाउ लेट्स सी सिलेक्शन कितना वर्क करेगा. देखो ਹੁਣ पूरा ब्लू है. ये देखो. गॉट द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन. जिन्ना सिलेक्ट होया उन्ना रेड होंदा जा रहा है. ठीक है. This Yes, is called yes. this is called pseudo element. Pseudo element. These type of selectors are called pseudo elements. Okay. Now the last. Okay, एक है भी ये चीज़ है. कॉम्बिनेशन सिलेक्टर है भी तुसी की कॉम्बिनेटर सिलेक्टर तुसी कीता सीगा है. फिर भी मैं एक बार दोबारा दिखा देना. ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ CSS ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ div ਦੇ ਅੰਦਰ nested ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ div ਦੇ ਅੰਦਰ nested ਹੈ. ਇਹ ਵਾਲੀ CSS ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟਰ. नॉर्मली ये आप यूज किया होया. रिमेंबर आप टेबल दे अंदर TR एंड TR दे अंदर वाला TD यूज किया सी. Yes, sir. ठीक है. IT व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस. करके देखना है प्रैक्टिकल. Yes, sir. Yes, sir. ओके प्रैक्टिकल करके देखते हैं. बट मैं तो एक बारी सारे दिखा देना सो दैट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस. एक है बच्चे है चाइल्ड सिलेक्टर. डिव दे अंदर वाले पैराग्राफ जो इमीडिएट चाइल्ड है. ठीक है. इमीडिएट चाइल्ड मतलब डिव दे एकदम अंदर एक ही लेवल नीचे पैराग्राफ मिलेगा ता लगेगी और होते है. मतलब अगर डिव दे अंदर कोई होर डिव है फिर डिव दे अंदर एक और स्पैन है स्पैन दे अंदर पैराग्राफ है फिर यह चीज़ नहीं लगेगी. लेकिन अगर डिव दे अंदर डायरेक्टली पैराग्राफ है फिर यह चीज़ लग जाएगी. जबकि यह ऊपर वाली चीज़ डिव दे अंदर किसी भी लेवल ते पैराग्राफ मिलेगा तो और यह प्रॉपर्टी लग जाएगी. नाउ द एडजेसेंट सिबलिंग. एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब क्या होता है कि लेट अस से मैं डिव शुरू की थी डिव बंद कर देती. नेक्स्ट मैं पैराग्राफ शुरू किया पैराग्राफ बंद कर देता. तो दोनों चीज़ें सेम ही लेवल ते है. डिवीजन भी सेम लेवल ते है. वो खत्म हुई तो फिर पैराग्राफ शुरू होया. कोई किसी का पेरेंट या चाइल्ड नहीं हैगा तो उन्होंने कहते सिबलिंग्स. ठीक है. सिबलिंग्स. तो अगर एडजेसेंट सिबलिंग है मतलब डिव जिदा ही खत्म हुई नाल ही पैराग्राफ शुरू होया उन्होंने कहते एडजेसेंट सिबलिंग्स नाल जेड़े हैगे ने. ठीक. तो अगर मैं चाहता कि डिव दे नाल वाले सिबलिंग कोई पैराग्राफ है उहदे उत्ते प्रॉपर्टी लगे तो मैं इदा लगाऊंगा यूजिंग द प्लस साइन. एंड फाइनली द टिल्ड साइन जिन्होंने कहते जर्नल सिबलिंग. मतलब फिर ये एडजेसेंट सिबलिंग का रूल नहीं है. आप मान लो टॉप के उत्ते डिव लगाई है एंड बहुत नीचे आके पैराग्राफ लगाया है लेकिन दोनों है सिबलिंग ही. राइट.
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸਿਬਲਿੰਗ। like for an example, if a person have 10 children, they first and second they are adjacent sibling, second and third they are adjacent sibling, but first and fifth they are just sibling, journal sibling, not the adjacent one. got it? इन्हें चला के देखिए। ठीक है, आपका Yes, sir. स्यूडो एलिमेंट भी देख लिया, स्यूडो क्लास भी देख लिया चला के, तो और तो कोई डाउट नहीं है। आईटी एंड बीसीए क्लास किसी ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? No, sir. ओके No, sir. चलो, now you can see if I want कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਪੈਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ठीक है। तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੇ। तो आई एम जस्ट यूजिंग द कलर, थोड़ा ਜਿਹਾ डिफरेंट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ मैं बॉर्डर यूज़ कर रहा, ठीक है। बॉर्डर ਦਾ सिंटेक्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की होंगी बॉर्डर दी? पहला साइज आंदा है, फिर स्टाइल आंदा है बॉर्डर दा, ते फिर कलर आंदा है। Color. ठीक है, लेट्स से आप ऑरेंज करा देते हैं, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड। एंड एज यू कैन सी स्पैन सिर्फ पैराग्राफ के अंदर वाले स्पैन दे विच देखो बॉर्डर लगा है, देयर वाज अ स्पैन आफ्टरवर्ड, है ना, यू कैन सी हियर दिस इज आल्सो अ स्पैन, राइट, बड़े रे उत्ते बॉर्डर नहीं लगा है। बॉर्डर किरे ते लगा है? जो स्पैन पैराग्राफ के अंदर है। एंड अगर मैं ये वाला स्पैन पैराग्राफ तो हटा देवां, वापस मैं वही चीज़ कर रहा, स्पैन दे शुरू होने तो पहले ही खत्म हो गया। नाउ पैराग्राफ के अंदर कोई स्पैन नहीं है, इन्हों रिफ्रेश कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी देयर इज नो बॉर्डर, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर कोई स्पैन है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी लगी भी नहीं। क्लियर? Yes, sir. सारे नु बच्चे कि दोबारा एक बारी करके Yes, दिखावा? sir. ओके, सो मतलब क्लियर है? ओके, Yes, sir. Clear. नाउ द एडजेसेंट सिबलिंग्स। एडजेसेंट सिबलिंग्स ਦਾ देखिए, तो एडजेसेंट सिबलिंग्स की मैं गल करदा, तो इत्थे प्लस का सिंबल, लेट्स सेव करदा। तो देखो वैसे तो पैराग्राफ के नाल ए स्पैन भी सिबलिंग है ना, ये पूरा ए वाला स्पैन भी फिर सिबलिंग ही है, एंड इवन द थर्ड स्पैन इज आल्सो अ सिबलिंग, एंड डिवीजन इज आल्सो अ सिबलिंग, क्योंकि पैराग्राफ खत्म होया नाल ही सेम लेवल ते स्पैन शुरू होया, स्पैन खत्म होया, फिर स्पैन शुरू होया, स्पैन खत्म होया, अगेन स्पैन शुरू होया, स्पैन खत्म होया, तो सारे एक ही लेवल ते है ना, बट मैं Yes, sir. एडजेसेंट सिबलिंग्स दे उत्ते लगाया है। तो लेट्स सी कि केड़े स्पैन ते बॉर्डर लगदा है। हुन आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस डाउन, एंड देखो सिर्फ पहले स्पैन दे उत्ते बॉर्डर लगदा है, राइट, only the first span has a border because that's the only adjacent sibling to the paragraph. Clear? Yes, sir. ते हुन मैं journal sibling लगा रहा, this is a journal sibling, this is a journal sibling, I saved it, and हुन देखना सारे दे उत्ते देखो बॉर्डर लग गया जर्नल सिबलिंग दे लिए, क्योंकि सारे दे सारे सिबलिंग सीगे, ऐसे सब दे उत्ते लग गया, राइट? Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. क्लियर है? क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. ओके, एक मैं चीज और करके दिखाना था लास्ट, जो कि सी ए वाली ए की सी एंसेस्टर वाली ਸੀਗੀ ना, इमीडिएट एंसेस्टर वाली सी, मतलब डिव ਦੇ ਅੰਦਰ इमीडिएटली अगर स्पैन आंदा है तो डिव ਦੇ अंदर वैसे तो कुछ भी नहीं है, बट मैं इमीडिएटली एक और चीज लगाना है डिव ਦੇ अंदर। लेट अस सपोज मैं पैराग्राफ लगाना, ठीक है, एंड पैराग्राफ ਦੇ अंदर मैं स्पैन लगा रहे हैं, ठीक, कुछ टाइप किया, स्पैन बंद किया, पैराग्राफ भी बंद किया। नाउ लेट्स सी कि डिव ਦੇ अंदर स्पैन ਦੇ ਉੱਤੇ लगता है या नहीं लगता है। तो एक सेकंड मैं सेव दोबारा एक बार कर लेना। नाउ लेट्स रन दिस। देखो डिव ਦੇ अंदर लगा जरूर है स्पैन, बट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बिल्कुल भी वो प्रॉपर्टी नहीं आई है ना, नहीं आई है, क्या आ गई है, ये सिलेक्शन वाला पैराग्राफ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, असली चल रहा है। सो देखो नहीं चलिया है ना, क्योंकि डिव दा इमीडिएट जो कह सकते हैं चिल्ड्रन नहीं है स्पैन, क्योंकि डिव दे अंदर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ दे अंदर स्पैन है। लेकिन ये चीज अगर हटा दी जावे, नाउ लेट्स सी, देखो हुन लग गया, क्योंकि स्पैन जो है डिव तो लोअर लेवल दे विच है, डिव दा एक चिल्ड्रन हैगा, ठीक है, वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द डिव, बट नॉट द इमीडिएट चिल्ड्रन, you can say it's a grandchildren of it. So clear है? Yes, sir. इन्नू की कहंदे है, इन्नू की कहंदे है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, ये भी मैं तुहानू दिखा देना। इस तो पहले मैं थोड़े जे रन करके दिखाना नाल तुहानू। लेट अस सपोज कि मेरा एक लिंक सीगा ना इत्थे, ये रहा, इन्हों ना मैं एक टारगेट देना, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट, सेव किया। नाउ लेट अस सपोज आई वांट स्टाइलिंग ऑन ऑल द एंकर टैग्स जिन्हां विच टारगेट एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो मैं सेव किया। आई एम गोइंग टू रन दिस डाउन नाउ, and as you can see there is a border on the link, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर दा सिंटेक्स की है, तुसी टैग दा नाम लिख दियो, कैपिटल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर तुसी एट्रीब्यूट दा नाम लिख दियो, ते सिर्फ उन्हां दे अंदर। हुण अगर मैं तो टारगेट हटा दवा या एक और लिंक बना लेंदे हैं, एक लिंक और बनाया, एंड अंदर टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लगाया है, एंड यू कैन सी दूसरा लिंक भी लग गया, बट वो और उत्ते बॉर्डर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि उससे टारगेट एट्रीब्यूट मिसिंग है। एंड लेट अस सपोज ये अंदर भी टारगेट एट्रीब्यूट हुंदा, अंडरस्कोर लेट्स से सेल्फ, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ब्लैंक वाले ते चाहिए, तो ਆਪਾਂ ਤੇ वैल्यू भी दवांगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, सेव रन, एंड यू कैन सी कि ब्लैंक वाले दे उत्ते आया, बट सेल्फ, एक सेकेंड, सेल्फ वाले दे उत्ते नहीं आया, ठीक है। अगर इनू भी ब्लैंक कर दिता जाए, सेव किया, दोनों दे उत्ते आ गया, राइट, क्लियर है? Yes, sir. ओके, बाकी मैं तुहानू एक्सप्लोर करन, मैं तुहानू दिखा देना, इनू एक्सप्लोर करना, तुसी खुद ट्राई करना। एक बच्चे एट्रीब्यूट सिलेक्टर हुंदा है, ए वाला टिल्ड दा सिंबल लगा हुंदा है, जिद्दां हुणे लिखो लगाई सी ना मैं एट्रीब्यूट नेम ते इक्वल टू ओदी वैल्यू,
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਲਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਲ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਲ ਵਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਾਵਰ, ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। तो फ्लावर पूरा एक वर्ड होना चाहिए, मतलब सनफ्लावर ऐदा वर्ड नहीं होना चाहिए, कल्ला फ्लावर एक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फ्लावर, ठीक। होल वर्ड जिदा उन्हें एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर समर स्पेस फ्लावर वर्ड होएगा ये भी सही होएगा, फ्लावर स्पेस न्यू ये भी देखो फ्लावर पूरा वर्ड मिलया, लेकिन अगर फ्लावर्स आ जाता है तो यह फ्लावर ना मैच नहीं करेगा, या माई हाइफन फ्लावर ये भी मैच नहीं करेगा, इनू करना तुसी, ठीक है। फिर दूसरा है डिवाइडर का सिंबल है, इक्वल टू है, ठीक। ये सिर्फ स्टार्टिंग दे विच अगर वैल्यू होएगी फिर मनेगा उन्होंने कि सही है। जिद्दां इत्थे तां फ्लावर अगे आ जाए पिछे आ जाए कोई फर्क नहीं ना सीगा, अगर सानू स्टार्टिंग दे विच ही चाहिए फिर आपां ये वाला एट्रीब्यूट लगाए, ये वाला मतलब सिंबल यूज करांगे इक्वल टू तो पहला, कि स्टार्टिंग दे विच ही चाहिए सानू, ठीक। एंड होल्ड वर्ल्ड ही चाहिए इहदे विच भी, जिद्दां सपोज तुसीं टॉप लिखदे हो ना, इहने टॉप लिखिया तो अगर टॉप मिलेगा होल वर्ल्ड फिर ही होएगा, अगर इदा टॉप टेक्स्ट होएगा, ठीक, ते तामी वो एक्सेप्ट कर लेगा इनू, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टॉप अगर सानू सेंटर च किते मिलता भी है ना, लाइक बॉटम टॉप समथिंग लाइक, फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तीसरा बच्चे यह हैगा एक्सपोनेंट का जिहड़ा तुहाडा सिंबल है, ठीक है। ये बस बच्चे तुहाडी वैल्यू बिगिन होनी चाहिए है तो, जिद्दां मान लो मैं फ्लावर ही लभ रहा सी उत्ते उपर ना, तो फ्लावर तो बाद अगर कुछ होर भी आ रहा है ना तो कोई फर्क नहीं पैंदा, फ्लावर होना चाहिए शुरू दे विच बस। फिर है बच्चे डॉलर, ये एंड होना चाहिए ये तो, जिद्दां मैं सपोज लिख रहा कोई चीज़ लिख रहा, लेट से अंडरस्कोर ब्लैंक लिख रहा, वैल्यूज ब्लैंक लिख रहा, तो अंडरस्कोर ब्लैंक अगर मैं वैल्यू लिखी है तो ब्लैंक तो खत्म हो रहा है ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर एंड नहीं हो रहा उस चीज़ उत्ते तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली स्टार, स्टार का मतलब है कि सेंटर च विच स्टार्टिंग च या एंड दे विच जिथे मर्जी है वैल्यू मिल जाए उन्हें एक्सेप्ट कर लेनी है। जिद्दां मान लो टाइटल में फ्लावर रखिया, मैं क्या WE जिथे मिल गया तो सही हो जाएगा, तो WE उन्होंने विचकार भी मिल जाए तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। आई गेस इट्स क्लियर, इन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करना, ठीक है, ठीक है। ओके जिद्दां मैं जिद्दां मैं एक मैं तुहानू करके दिखा देना, टाइटल एट्रीब्यूट दे रहा मैं इत्थे, नाम बोलो बच्चे कोई एक बच्चा, नाम बोल लो। आकांक्षा। आकांक्षा, ओके, लेट अस से टाइटल इज इक्वल टू, तो हुन किसे उत्ते आएगा बॉर्डर, नहीं आएगा क्योंकि ट्रिपल बी किसी का नहीं हैगा। हुन अगर मैं इत्थे AKAN इन्ना ही लिखदा, हुन सारियां ट्राई करते हैं आपां, ठीक है। पहला आपां टिल्ड ट्राई करते हैं, तो लेट्स सी, नहीं होया। अगर मैं इनू थोड़ा ब्रेक कर देवां, इदां कर देवां, देखो आ गया ना। तो टिल्ड का मतलब की है कि उन्होंने ये वर्ड चाहिए, जरूरी नहीं शुरू दे विच, मैं ये पहला भी कुछ लिख देना, जरूरी नहीं है शुरू च, देखो हजे भी आ रहा है ना, पर होल्ड वर्ड चाहिए उन्होंने, ठीक है। किसी वर्ड का पार्ट नहीं चाहिए, पूरा का पूरा वर्ड चाहिए उन्होंने, ठीक है। अगला ट्राई करिए, डॉलर, हुन नहीं आएगा,
लेकिन मैं ये चीज़ कट दवा अगर आ गया एंडिंग चाहिए है ना सिमिलरली बाकी दे भी एक्सप्लोर करना तुसी एक है ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ डिवाइडर वाला लेट्स सी नहीं आया एक ही करदा हुंदा है ये शुरुआत च लगदा है सो अगर मैं ये हटा देना ते आ जाएगा ठीक है क्लियर है Yes, sir. CSS सिलेक्टर ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ 1 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੰਬੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ div ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ div ਦਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ pseudo ਕਲਾਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ hover visited enable disable ਫਿਰ ਆਪਾਂ pseudo ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ elements like first line first letter before after selection and last ਆਪਾਂ attribute selector ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ attribute ਦੀ value ਪਾ ਸਕੀਏ so these are your CSS selectors ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ठीक है स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं Okay, sir. ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अटेंडेंस लगाती है बच्चे सब ने Yes, sir. मैं सेव Yes, करने sir. लगा मैं Yes, अटेंडेंस sir. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ HTML ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਕਰ ਇਮੇਜ ਹੈਡਿੰਗ ਸਪੈਨ div ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ बाकी है हजे टेबल बाकी है हजे मार्क्वी बाकी है एंड एक और साढ़े टैग सीगे जो बाकी है द रेस्ट ऑफ द टैग्स आर हजे भी लेफ्ट आउट है वो भी आप करने हैं CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ CSS ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ CSS ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ CSS ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ तो एक बारी इनू जरूर तुसी देख लेना अच्छे नाल एंड अगर तुहानू कोई डाउट होएगा तो छोटा जिहा डाउट सैशन आपां रख लवांगे मंडे नू आपां वापस HTML ते आवांगे ते साडी लिस्ट टेबल्स मार्क्यूई ये तीन टैग्स आपां करन दी कोशिश करांगे ठीक है कोई पूछना होवे Yes. कुछ डाउट होवे कुछ चीज़ रिपीट करवानी होवे 1 minute left नो IT बच्चे सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ क्लियर है ना की करना है की करवा चुके Yes, हो sir. हैं ठीक ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करना यू हैव 2 days पढ़ने की कोशिश करना पढ़ोगे फिर डाउट आएगा इफ यू हैव नो डाउट्स मींस फिर पढ़िया नहीं है अपा ठीक सो आई होप कि कोई डाउट्स ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ओके तो मीटिंग ख़त्म करिए कुछ होता नहीं No, sir. चलो ठीक है No, sir. okay I'll meet you on Monday then okay बच्चे